ہنجروال کے علاقے میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ریسکیورز کی جانب سے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فیکٹری میں حفاظتی انتظامات مکمل نہیں تھے۔ ریسکیو کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ فیکٹری مالکان کی جانب سے آگاہ کرنے میں تاخیر کی گئی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طلحہ، بتائے گا کیا کہا جا رہا ہے، کولنگ کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو 8 بجے آگ جو لگی اس پر تقریباً 7 گھنٹے کا آپریشن کیا گیا ریسکیو کی جانب سے، اور اس وقت اگر تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو آگ پر قابو جو کہ پا لیا گیا ہے، لیکن جو کولنگ کا عمل ہے ریسکیو کا حصہ ہے اس آپریشن کا وہ جاری ہے۔ اگر میرے کیمرامین پیچھے دکھا سکے تو چونکہ اس فیکٹری کی صرف ایک انٹرنس پوائنٹ تھا جہاں سے اندر جایا جا سکتا تھا، اسی سلسلے میں مختلف جو دیواریں ہیں وہ توڑی گئی، نہ صرف ایک طرف سے بلکہ کئی طرف سے۔ ابھی بھی اگر پیچھے دکھاؤں تو جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور ریسکیو کی جانب سے ایک جو کہ جگہ سے دیوار توڑی گئی وہاں سے جو کہ پانی ابھی بھی پھینکا جا رہا ہے۔ آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کولنگ کے عمل میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مزید درکار ہے، جس کے بعد مکمل طور پر جو فیکٹری ہے اس کو سیف قرار دے دیا جائے گا۔ اگر بتائیں تو ڈی جی ریسکیو کی جانب سے رضوان نصیر کی جانب سے یہاں پر گفتگو کی گئی، اور ان سے جب پوچھا گیا تو ان کی جانب سے ایک جو کہ ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہاں پر تقریباً 8:30 کے قریب آتش زدگی جو کہ دیکھنے کو ملی، لیکن ریسکیو حکام کو تقریباً 9:26 پر اطلاع ملی، جس کے 5 سے 10 منٹ کے اندر یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں پہنچنا شروع ہوئیں اور ریسکیو کی جانب سے یہاں پر آپریشن کیا گیا۔ رضوان نصیر کی جانب سے ڈی جی ریسکیو کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ جب یہاں پر پہنچے تو بجلی کٹ چکی تھی، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری کے اندر سے پانی کا کوئی سورس نہیں ملا، جس کے باعث کافی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور واسا سے مدد لینی پڑی، اور واسا کے ٹینکرز یہاں پر پہنچتے رہے، اور ریسکیو کی ٹوٹل 21 گاڑیاں ان کے مطابق یہاں پر کام کرتی رہیں، اور ان کی جانب سے ریسکیو کیا گیا، اور جو آگ بجھانے کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ اگر بتاؤں تو ڈی جی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ایسے کیمیکل تھے، پینٹ تھا اور ایسی چیزیں تھیں جس پر آگ لگنا آسان تھا اور بجھانا کافی مشکل تھا، جس کی وجہ سے جو آپریشن تھا کافی دیر تک جاری رہا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ مکمل طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تو طلحہ بتائیے گا کہ پولیس کی کتنی بڑی نفری اب اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور ریسکیو کی ٹوٹل کتنی گاڑیوں نے حصہ لیا ہے اس آپریشن میں، اور کولنگ کا عمل کتنی دیر میں مکمل کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو جب صبح آگ لگی اور یہاں پر پہنچے تو یہاں پر پتہ چلا کہ ریسکیو کی 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر کام کر رہی تھی، جس کے بعد 2-3 گاڑیاں اور رہیں اور 5 گاڑیاں ہو گئی، جبکہ ریسکیو حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 21 گاڑیاں جو کہ مجموعی طور پر ریسکیو کی یہاں پر کام میں مشغول رہیں اور ریسکیو آپریشن کرتی رہیں۔ اگر پولیس حکام کی بات کی جائے تو پولیس کی بھاری نفری تو یہاں پر موجود نہیں ہے، مگر پولیس کے چند اہلکار یہاں پر موجود ہیں جو کہ فیکٹری کے اندر جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور جو کہ ریسکیو کے ساتھ مل کر بھی کچھ کام کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی انہیں جو کہ حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے۔ اگر بتاؤں تو ریسکیو کی ٹیموں کی جانب سے یہاں پر آپریشن جاری رہا، نہ صرف مرد حضرات بلکہ ریسکیو کی خاتون اہلکار بھی اس میں شامل رہیں، اور جو کہ ساتھ والے رہائشی علاقے تھے وہاں پر چھتوں پہ جا کر جو کہ ریسکیو کے لیے فیکٹری کی دیواریں توڑی گئیں اور وہاں سے پانی اندر انٹر کیا گیا۔ پانی کے ساتھ ساتھ فوم کا بھی استعمال کیا گیا تاکہ ریسکیو کر کے آگ کو جلد از جلد بجھایا جا سکے۔ ابھی اگر بات کی جائے تو آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جو دھواں تھا کالا دھواں وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور فیکٹری کے اندر موجود ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کولنگ کا عمل جو ہے وہ تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے تک جاری رہے گا، جس کے بعد فیکٹری کو مکمل طور پر جو کہ محفوظ قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے طلحہ، بتائیے گا کیونکہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، رہائشی عمارتیں ہیں اس سے فیکٹری کے آس پاس، تو کیا بتایا جا رہا ہے کیونکہ فیکٹری کی دیواروں کو تو خاصا نقصان پہنچا ہے، تو کیا یہ عمارتیں محفوظ ہیں؟
जी बिल्कुल, अभी की बात की जाए तो फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह मुतासिर हुई है। काफ़ी देर तक आग लगी रहने की वजह से फैक्ट्री की जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर काफ़ी बसीरा हो चुकी है अंदर से, मगर जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है, जिसके वजह से जो उसके आसपास के इलाके थे वो इसकी जद में आने से बच गए हैं, क्योंकि आग साथ वाले घरों तक नहीं पहुंची, जिसके बाइस जो आसपास के घर थे वो महफूज करार दिए जा रहे हैं, मगर फैक्ट्री की जो दीवारें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। जी अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अथॉरिटी एक्ट तैयार कर लिया गया है। अथॉरिटी का नया एक्ट मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दिया गया है। पंजाब काबीना नई अथॉरिटी की हतमी मंजूरी देगी। हुनरमंदी, टेक्निकल तालीम और रोजगार के फरोग के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामी हमारे साथ मौजूद है। चलिए रामी, आगाह कीजिएगा। एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसके लिए अब बाकायदा इसका एक्ट तैयार करके, ड्राफ्ट तैयार करके काबीना को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया है। और इस अथॉरिटी का जो मकसद है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी और इसमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़म किए जाएंगे। ये जो एक्ट तैयार किया गया इसमें ये भी इस चीज़ को जो है वो शामिल किया गया। अब काबीना की मंजूरी के बाद ये बाकायदा ये अथॉरिटी जो है वो एक नई नई अथॉरिटी होगी जो कि स्किल्स के हवाले से, स्किल्स पर्सन के हवाले से आइंदा मुस्तकबिल में फ़ैसले करेगी। और इसका मकसद क्या है, ये सूबे में हुनरमंदी, टेक्निकल तालीम और रोज़गार के फ़रोग के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी होगी। नई अथॉरिटी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के निज़ाम में आलमी मेयार से हमांग जो है उसको बनाएगी और उसके साथ ही सरकारी ट्रेनिंग इदारों की निगरानी और इंतज़ाम अथॉरिटी के जो है वो सुपुर्द किया जाएगा। इस मसवदे के मुताबिक निजी ट्रेनिंग इदारों की रजिस्ट्रेशन, मेयारात की जाँच और मॉनिटरिंग का निज़ाम भी नाफज इसी अथॉरिटी के तहत किया जाएगा। और इसमें जो इदारे ज़म किए जा रहे हैं उसमें टेप्टा है, PVTC है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और टेस्टिंग बोर्ड के जो नए ढांचे हैं वो इसके अंदर ज़म किए जाएंगे। तो मुख्तलिफ इदारों को समेट कर एक मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। और इसका बाहमी अगर देखा जाए तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि जितने भी पंजाब के अंदर जो स्किल्स पर्सन हैं उनके मुस्तकबिल के लिए नई नौकरियों की तलाश, और इसके ना सिर्फ पूरे पंजाब के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी जो रोज़गार की फराहमी है वो इस अथॉरिटी के ज़िम्मा होगी। और ये अथॉरिटी हुकूमती अहकामात के बुनियाद पर अब ये फैसले करेगी कि बच्चों को किन किन ममालिक में बाहर जो है रोज़गार के लिए भेजा जा सकेगा और साथ ही नए रोज़गार के मौके भी उन स्किल्स पर्सनस को मुहैया करने जो कि हुकूमती इदारों से बाकायदा जो डिग्री होल्डर्स हैं और इसके साथ जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, स्किल्स लेते हैं, उन बच्चों को मुस्तकबिल में रोज़गार भी देना है, उनको बाहर भी भेजना है और आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो स्किल्स एजुकेशन है उसका दायरा कार मज़ीद वसी भी करना है। बहुत शुक्रिया अली रामी। कि वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का ये मुकदमा है। मुकदमे में मुलविस मुलजिमा फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद बात कर लेते हैं इस पर। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरोवर चौधरी ने PTI की रहनुमा फलक जावेद जो है उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है और अदालत ने फ्रीकैन के वकला की दराज सुनने के बाद मुलजमा फलक जावेद की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों की वजह रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शहराम सरोवर चौधरी की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो मियां शफाक अहमद एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मुलजमा की जानब से दलाल दिए, जबकि सरकारी वकील ने इनकी दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। अदालत ने के वकला की दराज सुनने के बाद मुलजमा फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुनीर अहमद भट्टी की अपीलों की पैरवी से माजरत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में दुरुकनी बेंच ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपीलों पर समाअत की है। ज़ाती वजूहात की बिना पर अपीलों की पैरवी नहीं कर सकता, स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुनीर अहमद भट्टी की जानिब से ये कहा गया है। तो हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुनीर अहमद भट्टी की अपीलों की पैरवी से माजरत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। PTI का 25 अप्रैल को रज़ाक स्टेडियम शदरा में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत की दरखास्त, हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील की इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस फारूक हैदर P ने
اکمل خان کی درخواست پر بطور اعتراض کیس سماعت کی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا تھا۔ رجسٹرار آفس نے متعلقہ فارم سے رجوع نہ کرنے پر اعتراض لگایا تھا۔ درخواست گزار کی جانب سے سردار خرم لطیف کھوسا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فاروق خان لودھی بھی پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ سردار خرم لطیف کھوسا کی جانب سے کہا گیا جلسے کے لیے ڈی سی اور چیف سیکرٹری کو درخواستیں دی ہیں۔ انہوں نے اسپیشل سیکرٹری ہوم کی بجائے چیف سیکرٹری کو درخواست دی ہے۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کاہنہ میں بیوی کو قتل کرنے کا یہ کیس ہے۔ مجرم محمد اعظم کو سزائے موت اور 3 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے۔ مجرم اعظم نے بیوی کو شک کی بنا پر گردن کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔ پروسیکیوٹر بلال عبدالرؤف نے 14 گواہ ملزم کے خلاف پیش کیے۔ مجرم اعظم کے خلاف تھانہ کاہنہ نے 2025 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہین عتیق۔ جی شاہین۔ جی، کاہنہ میں گھریلو ناچاکی پر بیوی کو گلا کاٹ کر ہلاک کرنے کے کیس کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں سنایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے، میرے پاس یہاں پر بلال عبدالرؤف پراسیکیوٹر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا تفصیلات ہے اور سزا کتنی ہوئی ہے، کتنا جرمانہ ہوا ہے، بتائیں سر۔ یہ سر تھانہ کاہنہ کا وقوع ہے، جس میں ملزم جو تھا وہ شبنم بی بی کا خاوند، اس نے تیزدار چھری کے ساتھ اپنی ہی بیگم کا گلا کاٹ کے اسے صرف گھریلو تنازعات کی بنا پر قتل کر دیا، اور اس میں ملزم کو سزائے موت ہوئی ہے اور 3 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ ہم نے 4 ماہ کے اندر یعنی کہ جج صاحب نے کیا ہے، اعجاز احمد بوسال صاحب نے سر، اور اس میں ملزم نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنی بیوی شبنم بی بی کا گلا کاٹا تھا، اور کیس ثابت ہونے پر ملزم کو سزائے موت ہوئی ہے۔ اس میں ہماری طرف سے 14 گواہان پیش کیے گئے اور فرانزک رپورٹس جو تھی وہ بھی پازیٹیو آئی ہیں، ملزم کے خلاف آئی ہیں۔ جی، ہم نے بلال عبدالرؤف پراسیکیوٹر ان کی گفتگو سنی۔ کاہنہ کے اندر یہ شبنم بی بی کو جو ہے وہ شوہر اعظم نے جو ہے وہ چھری سے اس کا گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا، صرف ایک شک کی بنیاد کے اوپر عدالت نے سزائے موت اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ شاہین عتیق۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا کالج روڈ پر غیر قانونی کمرشل پراپرٹیز کے خلاف آپریشن۔ ایل ڈی اے نے کالج روڈ ٹاؤن شپ پر متعدد غیر قانونی کمرشل املاک کو سربمہر کر دیا۔ اس کارروائی کے حوالے سے آگاہ کریں گے دور نایاب جی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایل ٹی شعبہ ٹاؤن پلان کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور اس میں ڈائریکٹریٹ جو ٹی پی زون 4 تھا اس کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ اس میں متعدد کاروباری مراکز تھے، دکانیں تھیں، 2 اس میں بینک ہیں جن کو سربمہر کیا گیا، اور یہ بلڈنگیں جو ہیں یہ غیر قانونی کمرشلائز ہیں، ریزیڈینشل پراپرٹیز پر بنائی گئی تھی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ نادہندگی میں بھی کروڑوں روپے کمرشل فیس ان پر جرمانے کی صورت میں عائد ہوتی ہے، تاہم غیر قانونی ہونے کے مد میں ان کو جو ہے سربمہر کیا گیا ہے۔ جی دور نایاب، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ اسکول بند ہونے کے وقت طلباء کی حفاظت یقینی بنانے کے احکامات جاری۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اسکول اوقات ختم ہونے کے بعد طلباء کو اکیلا چھوڑنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ اسکول بند ہونے کے وقت طلباء کی حفاظتی یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے ایک اہم مراسلہ جاری کیا ہے۔ اسکول کا کار ختم ہونے کے بعد طلباء کو اکیلا چھوڑنے پر تشویش کا اظہار۔ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو تمام کلاس رومز اور دیگر جگہوں کی مکمل چیکنگ کا حکم دے دیا۔ اسکول بند ہونے پر ہر طالب علم کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹیچر یا اسٹاف ممبر کی ڈیوٹی لگانے کا حکم۔ تعینات عملہ اس وقت تک اسکول نہیں چھوڑے گا جب تک تمام طلباء کے جانے کی تصدیق نہ ہو۔ طلباء کے اسکول میں رہ جانے کے واقعات پر سخت نوٹس لینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اسکول سربراہان کو ہدایت پر عمل درآمد کا ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ اور 10ویں شالامہ انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین شالامہ ٹرسٹ شاہد حسین نے شرکت کی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے شرکت کی ہے۔ اسی طرح پروفیسر احسن ایوب قاضی بھی موجود رہے۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی زاہد چودھری۔ شالامار انٹرنیشنل کانفرنس کا آج آغاز ہو گیا، جس میں چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز شالامار ہسپتال شاہد حسین، اس کے علاوہ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ لم سے
प्रोफेसर एहसान अयूब काजी और कराची से प्रोफेसर नवीद जो हैं वो इसमें शरीक थे, जबकि जेनेट ग्रांट जो हैं उनकी जानिब से भी जो है वो खुसूसी शिरकत की गई है आज के सेशन में। और इसके साथ साथ मुल्क भर से जो माहिरीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस साल भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के आज के इफ्तिताई सेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया। प्रिंसिपल शालामार मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कॉन्फ्रेंस का आज आगाज़ हो गया, ये एक डेकेड है चेंज का जिसके ऊपर बात की जा रही है, तो आज इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में आप क्या समझते हैं कि ये जो आज जिन मौज़ूआत का अहाता किया गया और आइंदा जो अहम मौज़ूआत इसके जो है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो ज़ेर बहस आएंगे वो क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। आज का प्लेनरी सेशन था जिसमें पहली 3 टॉक्स थी, जैसे आपने फरमाया कि डॉक्टर जेनेट ग्रांट आई थी यूके से, एहसान काजी साहब आए थे फ्रॉम लम्स और नवीद यूसुफ AKU बोर्ड से आए थे। आई थिंक आज के सेशन ने किक स्टार्ट किया है मगर अगले 4 और 5 दिन को कि ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के और हेल्थ केयर के, क्या हमारे ऊपर वो लागू होते हैं कि नहीं और किस तरह उनको हमने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। और आज एहसान अयूब काजी साहब ने अपनी टॉक में बताया कि जी आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अल्टीमेटली आपने फैसला करना है। और इसमें ये हुआ कि अब ये चीज़ें हैं विच आर हियर टू स्टे, अब इनको हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करना है। सो वो अंधी तकलीद के हम हक में नहीं है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन में इस वक्त जितनी भी थ्योरीज़ हैं लर्निंग की और टीचिंग की और असेसमेंट की, वो आ रही हैं वेस्टर्न थॉट से। अब हम देख रहे हैं कि जी बहुत सारी हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं साउथ की तरफ, चाइना की तरफ। तो हमें वहाँ से भी देखना है कि जी क्या तब्दीलियाँ आई हैं और उन्होंने बग़ैर वेस्टर्न थॉट को अपनाए हुए अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को और अपनी एजुकेशन को किस तरह इम्प्रूव किया। सो असल में जो चीज़ है वो ये है कि जी हर चीज़ आपके अपने एक लोकल मिलियो और लोकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स या जो गाइडलाइंस वहाँ पे लागू हैं वो शायद हमारे लिए लागू ना हो सकें। उनमें से कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने इकनॉमिक हालात के, अपने सोशल हालात के मुताबिक हमें अडेप्ट करना चाहिए। और ये सारी जो आज की इनिशियल सेशन था ये यही था कि नई टेक्नोलॉजीज़ को और नए गाइडलाइंस को हमने अडेप्ट कैसे करना है ताकि हमारे लोगों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे और हम उनको सेफ़ हेल्थ केयर और इकोनॉमिकल हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। हम उनको बेहतर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बेहतर इलाज मुआवजा मिल सके, बेहतर मेडिकल एजुकेशन हो, जदीद रुझानात जो हैं उनको किस हद तक अपनाया जा सकता है और इनसे किस तरह इस्तेफादा किया जा सकता है, हमारे लिए कितने अहम हैं और कितने मुआवन हो सकते हैं, ये सब आज के जो है वो इफ्तिताई सेशन का मौजू था। इस कॉन्फ्रेंस में शोबा तिब के मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ अमराज, बीमारियाँ, उनका इलाज और इस हवाले से होने वाली जो जदीद रिसर्च है वो पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुतादिद अफसरान की जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रमान उमर को जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और चीफ सेल्स ऑफिसर खुरम शहजाद को भी जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इंचार्ज फैसलाबाद इमरान सफ्तर वेक को जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इनके साथ साथ उबैद नासिम, शहजाद अहमद अवान और यासिर महबूब को भी जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अमजद इकराम, मोहम्मद शाहिद जावेद, उमर असद खान और साजिद रजा सैयद को तरक्की दी गई है। मोहम्मद कैसर याकूब, नदीम अख्तर, हिदायतुल्लाह खान न्यासी को जनरल मैनेजर का ओहदा दे दिया गया है। काशिफ जावेद, राशिद एहसाक, मोहम्मद रिजवान, शाहिद इकबाल को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। मोहम्मद आबिद नवाज, जावेद अशरफ, मीसम इब्रार, आकिफ ए नूर को तरक्की दी गई है। सोलत रशीद लोन, जमशेद रियाज, साजिद जावेद की जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। HEC का नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बारे में बड़ा फैसला। तहसील सतह पर नई यूनिवर्सिटी ज़िले कैंपस के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद क्या फैसला किया गया है, ख़त का क्या मतन है, इमरान यूनिस से जान लेते हैं। जी इमरान। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने नई यूनिवर्सिटियों के क़याम के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने तहसील सतह पर नई यूनिवर्सिटियों और इनके ज़ैली कैंपसेस के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने लाहौर समेत
मुल्क भर की जामियात के वाइस चांसलर को एक मरासला जारी किया है, जिसमें बयान किया गया है कि अब से तहसील सतह पर कोई भी नई यूनिवर्सिटी या उसका झैली कैंपस जो है वो कायम नहीं किया जाएगा। जो ख़त भिजवाया गया है वाइस चांसलर्स को, उसमें बयान ये किया गया है कि अगर ज़रूरत हो तहसील सतह पर नई यूनिवर्सिटी या इसके झैली कैंपस को कायम करने के लिए, तो उसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी जो है वो ली जाए, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक कमेटी जो है वो बैठेगी जो कि तमाम तर चीज़ों को देखेगी। क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने जो ख़त जारी किया है उसमें कई तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे पहले तो असातिज़ा जो है उनका ना होना शामिल है। इसके साथ मुनासिब जगह जो है वो मुतलका जो झैली कैंपसेस है उनके पास ना होना, और इसके साथ जो सहूलियात का फ़क़दान है झैली कैंपसेस में, उसको वजह जो है करार दिया गया। जी इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्मॉग के तदारुक के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सरगर्म है। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों से माहौलियाती इकदाम की ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियासी। जुनैद बताइएगा। जी, स्कूलों से इकदाम की रिपोर्ट तलब कर स्कूल में मेवाकी जंगला घास और डस्टबिन की तफसीलात मांगी गई हैं। स्मॉग के तदारुक के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस सरगर्म हो गया। तमाम ज़रा के सीईओ को 2 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। स्कूल में टफ टाइल्स और ग्रीन बेंचेस की तनसीब का हुक्म भी दिया गया है। मेवाकी फॉरेस्ट मनसूबे पर पेश का रिपोर्ट भी तलब की गई है। मुख्तलिफ स्कूलों में डस्टबिन की फराहमी की तफसीलात मांगी डिजिटल फॉर्मेट में मांगी गई हैं, और आला हुकाम को आगाही देने के लिए डाटा फौरी फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। सख्ती के बावजूद शहरी ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आए। रवां साल के 3 माह में डिजिटल चालान ई चालान की रिकवरी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। अली साही हमारे साथ है, मजीद दादोशुमार बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानब से जुर्मानों में इजाफा किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती की गई। लेकिन इसके बावजूद शहर में देखा जाए तो दादोशुमार के मुताबिक शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आए। गुज़श्ता साल के पहले 3 माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानब से 11,60,000 चालान किए गए, जिससे 5 करोड़ 80 लाख के जुर्माने किए गए, जबकि रवां साल के पहले 3 माह में 4,31,000 चालान और 96 करोड़ के जुर्माने किए गए। इसी तरह वन ऐप के जो इफ्तिताह के बाद ई चालान की वसूलियों में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और 6 करोड़ से बढ़कर ये 96 करोड़ पर पहुंच गई। लेकिन शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों से बाज नहीं आए। DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से और जो सारक CTO लाहौर अतर वहीद की जानब से शहर भर में सख्ती से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक वार्डन को अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन जुर्माने बढ़ने के बावजूद शहरी अभी भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। और हादसात के हवाले से भी बात की जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत लाहौर में 21% कमी हुई है, जबकि पंजाब भर में 26% मोहल्लक हादसात में कमी देखी गई है। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना से मुलाकात हुई। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल से उन्हें फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। शहीद कांस्टेबल गुलाब मुर्तज़ा की अहलिया की माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर को हिदायत की गई। हेड कांस्टेबल अरशद अली की माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत की गई है, जबकि मरहूम सैनिटरी वर्कर सादिक मसीह की बेवा की माली इमदाद की दरख्वास्त पर रिलीफ की हिदायत जारी की गई है। कांस्टेबल मोहम्मद नवाज की पी कैडर के तहत प्रमोशन की दरख्वास्त पर जेर गौर लाने की हिदायत की गई है। आज पंजाब ने रिसेप्शन, एडमिन प्रमोशन और दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए। DHA की कमाल महारत, बगैर ट्रैफिक रोके वतीन चौक पर ट्रैफिक की बहाली की गई है। रीमॉडलिंग का मंसूबा बिला रुकावट सिर्फ 3 माह में मुकम्मल कर लिया गया। दुर नायाब मजीद डिटेल्स बता रहे हैं, जी आगाह कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर DHA का ये विजन था कि DHA के अंदर जहाँ पे वतीन चौक है, इसी तरह इस मेन बुलेवार्ड का जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको ठीक किया जाए, और उसके हवाले से रिमॉडलिंग का काम स्टार्ट किया गया था। और इस रिमॉडलिंग के अंदर अब इसमें यूटर्स बनाए जाने थे, बहुत ही बेहतर इसको मैनेज किया जाना था। महज 3 महीने के अंदर अंदर इसको बना लिया गया है और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसकी खूबसूरती ये रही कि इस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ना यहाँ पे ट्रैफिक जैम रही, ना यहाँ पे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक चल रही है, बड़ी आसानी के साथ ट्रैफिक जो है क्रॉस भी कर रही है। फेज 6 से आने वाले अब बराह रास्त जो है वो किताब चौक की तरफ जा सकते हैं।
इसी तरह अगर उन्होंने लम्स की तरफ यू टर्न लेना है, लम्स जा सकते हैं, और जो किताब चौक से आ रहे हैं वो लम्स की तरफ जाके यू टर्न लेके वापस फेज 6 की तरफ जा सकते हैं। इससे तमाम तर जो कंजेशन का मसला है वो हल हो चुका है। वतीन चौक को ख़त्म किया जा चुका है, वहाँ पे जो मोनूमेंट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और अब बहुत स्मूथ ट्रैफिक कर दी गई है। नई यू टर्न बना दी गई है, कारपेटिंग कर दी गई है, साइनेज कर दी गई है और महज 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा किया। क्योंकि DHA ने अपना जो एक ट्रेडमार्क था, जो उनका एक विजन था कि हमेशा वो जब जी तो नयाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी ऑफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दाता दरबार का दौरे के दौरान तामीराती मंसूबे में जारी कामों का जायजा लिया। दाता दरबार तौसीम मंसूबे में जदीद तरीन गुंबद की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ का मंसूबे का तफसीली दौरा पेशरफ्त पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। गुंबद की तामीर 2 माह में मुकम्मल की जाए। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने हिदायत जारी कर दी है। गुंबद को इस्लामी फन तामीर जदीद इंजीनियरिंग का हसीन इम्तिजाज बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान DCL एजाज के अहम पॉइंट्स के दौरे। कमिश्नर का रावी के अहम पॉइंट्स शाहदरा काला खताई रोड और रेलवे ट्रैक रोड एरिया का दौरा। चीफ इंजीनियर इरीगेशन लाहौर रीजन ने अहम पॉइंट्स पर इकदाम प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी। शाहदरा ब्रीफिंग में साइफन से अहम पॉइंट्स तक स्ट्रक्चर्स की कैपेसिटी और तैयारियों का जायजा पेश किया। लाहौर शेखुपुरा कसूर की 122 ड्रेन्स में डिसिल्टिंग ऑपरेशन जारी हैं। कमिश्नर मरियम खान का ये कहना था डिसिल्टिंग ऑपरेशन मानसून इंतजाम के हवाले से पूरी डिवीजन का सबसे बड़ा हदफ है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील सदर में तरक्याती काम डेंगू मुहिम का जायजा। चीफ ऑफिसर MCL और AC सदर हमरा थे। वास्ता LWMC और डेंगू वर्कर्स भी शरीक हुए। लिथड़ में डेंगू फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बेदिया रोड पर इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। मेट्रिक के इम्तहान जारी हैं। DC लाहौर ने इम्तिहानी अमल का भी जायजा लिया। बेदिया रोड पर सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ मोता सिंह वाला में LDP स्कीमों का भी जायजा लिया गया। AC सदर ने जारी और मुकम्मल स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। हायर एजुकेशन कमीशन टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेगी। नौजवानों के दरमियान साइंस पर मबनी मुकाबले कराए जाएंगे। कामयाब तलबा को मुकम्मल फन ट्रेनिंग, बैनुल-अक़वामी साइंस ओलंपियाड में शिरकत का मौका मिलेगा। बगैर दाखिला टेस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में मुफ्त तालीम हासिल होगी। तलबा को बगैर दाखिला इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मुफ्त तालीम हासिल होगी। फीस में 100% तक छूट, महाना स्कॉलरशिप और 5 लाख से ज्यादा इनामात फराहम किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद तलबा 30 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। उधर रमादा होटल में किक ऑफ के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद ज़रूरी वैल्यू चेन्स में मयार को बेहतर बनाना था। अहवाल बताएंगे अफशर रिजवान जी। इस वक्त हम मौजूद हैं रमादा होटल में, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की लोसस के हवाले से जो है वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन इसमें मौजूद हैं। एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान 8वां मुल्क है रैंकिंग के हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में की वजह से आमतौर पर रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स की यील्ड्स को इम्पेक्ट कर रहे हैं, क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्पेक्ट कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इसके लिए एक जामे प्लान बनाएं कि हाउ वी कैन मिटिगेट दी इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। GIZ ने ये जो वर्कशॉप आज की है ये बहुत ही एक मौजू वर्कशॉप है। इन्होंने 2 क्रॉप्स किन्नू और पोटैटो के लिए ये वर्कशॉप अरेंज की है और इसके लिए स्टेक होल्डर वर्कशॉप है। मुख्तलिफ लोगों की इनपुट लेना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, इश्यूज़ क्या हैं, उनके सलूशंस क्या हैं। का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्कशॉप के जरिए हमें ऐसा डाटा मिल सकेगा जिसके तहत जो है हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और इस क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को जो है इसको हल कर सकेंगे और अपनी फसल को और अपने एग्रीकल्चर को मजीद बढ़ा सकेंगे। जी अफशर रिजवान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो रमादा होटल के किक ऑफ के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद ज़रूरी वैल्यू चेन्स में मयार को बेहतर बनाना था। पंजाब में किन्नू और आलू की पैदावार को मौसमियाती खतरात से बचाने पर गौर किया गया। ज़रूरी शोबे में मयार बेहतर बनाने और उन नुकसानात कम करने के लिए इकदाम ज़ेर बहस आए। माहिरीन, सरकारी हुकाम और निजी शोबे के नुमाइंदों ने वर्कशॉप में शिरकत की।